اصل ایشو جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں تمام سائڈز کی، خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں، پی ایم ایل این کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، آخر سب پاکستانی ہیں، میں ان کی ایک امپورٹنٹ ایشو کی طرف کہ کیا پاکستان ایک بلیک سوان ایونٹ کی طرف بڑھ رہا ہے یا اس کو کوئی اس طرف دھکا دے سکتا ہے، اس میں کوئی کھیل سکتا ہے اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم تھوڑا سا ذکر اس کا کر دیں کہ بلیک سوان ایونٹ کی جو ٹرم ہے اس کا گزشتہ 15-20 برس میں اتنا زیادہ استعمال کیوں ہوا۔ ٹرم تو غالباً پہلے بھی ایگزسٹ کرتی تھی کہ اگر کوئی بہت ہی امپرابیبل ایسی چیز، کیونکہ سوان جو ہے وہ ہوتی سفید یا سفید شیڈ ہی کی ہوتی ہے دنیا بھر میں، لیکن آسٹریلیا کے اندر ایسی سوان، ایسی بطخیں پائی جاتی ہیں جو کالے رنگ کی ہوتی ہیں، اور یہ بڑا ریئر فنومنا ہے، تو وہاں سے یہ ٹرم استعمال تو ضرور ہوتی ہے فار سم تھنگ دیٹ از ویری امپرابیبل، جو پیراڈاکس ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے، بڑی ریئر ہے لیکن ہوتی ہے۔ لیکن اس ٹرم کو بہت زیادہ مقبولیت پرووائڈ کی فائنینس کے ایک پروفیسر نے، کرسچن پروفیسر ہیں، نام ان کا کرسچن مسلم ملتا جلتا ہے، لیبنن سے ان کا اوریجن ہے، بچپن بھی ان کا لیبنان میں گزرا، نسیم نکولس طالب یا نسیم نکولس طالب، نام بھی آپ دیکھیں مکسڈ ہے۔ یہ لیبنن کی بڑی خاصیت ہے لیبنان کی کہ وہاں کرسچن اور مسلمز جو ہیں وہ کلچرلی بالکل سملر ہیں، ان کی بود و باش، ان کا طور طریقہ، ان کا تمام اٹھنا بیٹھنا، ان کا جو پورا کلچر ہے وہ بالکل ایک یونیفائڈ کلچر۔ اور اس کتاب میں، جو ان کی کتاب 2007 میں میرا خیال اس کے آخر میں آئی تھی، بلیک سوان ہی کے نام سے، یہ بڑی انفلوئنشل کتاب ہے، نہ صرف اس کے کہ یہ نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلر ہے، بلکہ اس کو دنیا کے انفلوئنشل سرکلز میں، کارپوریٹ بزنس، ایکیڈیمک سرکلز کے اندر اس کتاب کو بہت دلچسپی سے، بہت سیریسلی لیا گیا، اور اس کے کئی ایڈیشن آ چکے ہیں۔ آپ نے اس کو پڑھنا چاہیے، بڑی انفارمیٹیو بک ہے، میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب جو ہے کنڈل پہ بھی ہے، پرنٹ میں بھی ہے، آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ اس بک میں اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ لیبنان کے پولیٹیکل کرائسس میں، کیونکہ پروفیسر وہ فائنینس اور اکنامکس کے ہیں اور وال اسٹریٹ جرنل میں کام کر چکے ہیں، اور اس میں 2008 کا جو فائنینشیل کرائسس ہے اس کے بلڈ اپ کی طرف یا فائنینشیل کرائسس ہونے کے حوالے سے یہ کتاب ہے، لیکن اس کا جو بلڈ اپ ہے وہ لیبنان سے ہوتا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ لیبنان کی جو پولیٹیکل، جو اس کا معاشرہ تھا، وہ بہت ہی کمپریہنسو کمپوزٹ معاشرہ تھا گزشتہ کئی صدیوں سے، جس میں کرسچن، مسلمان اور ان کی جو مختلف دھڑے ہیں اور چھوٹی سی یہودیوں کی آبادی بھی، وہ بہت ہی امن سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، اور ان کا آپس میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں تھا، جو بڑی امپرابیبل بات تھی، بیکاز باقی پورے مشرق وسطیٰ میں کرسچنز اور مسلمانوں کے درمیان میں ساری صلیبی جنگیں ہوئیں، پورا مڈل ایسٹ پہلے کرسچن تھا، پھر مسلمان ہو گیا۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کرسچینٹی کا آغاز یہیں سے ہوا ہے، یروشلم سے کرسچینٹی کا آغاز ہوا، ایجپٹ کرسچن تھا، ایران بہت کرسچن تھا، عراق میں بہت کرسچنس تھے، فلسطین کرسچن سے بھرا پڑا تھا، اور سیریا کرسچن تھا، رومن امپائر یہیں پہ تھی۔ تو کرسچینٹی کو جب اسلام نے ریپلیس کیا تو ہر طرف، ہر ملک کے اندر، ہر اسٹیٹ میں بہت جھگڑا تھا، لیکن لیبنن کی انہوں نے اگزامپل دی کہ یہاں کوئی جھگڑا نہیں تھا، یہاں جو مسلمز، کرسچنز جو ہیں وہ بہت ہی پرامن طریقے سے آپس میں رہتے رہے۔ پھر کس طرح سے یہاں پر ایک بہت ہی عجیب چیز ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، دس از واٹ دی ہول کرکس، جہاں سے وہ شروع کرتے ہیں اپنی کتاب کو، کہ یہاں جو سول وار ہوئی، جب اس میں انجیکٹ ہوئے غالباً پیلسٹینینز، جب جارڈن سے 1970 میں بلیک سپٹمبر کے واقعے میں، جس میں جنرل ضیاء الحق کا بھی نام لیا جاتا ہے، جو اس وقت بریگیڈیئر تھے، ان کا بھی بڑا نیگیٹو رول ہے اس میں فلسطینیوں کے قتل عام میں، لیکن فلسطینیوں کو جارڈن کے قتل عام سے جب پھینکا گیا لیبنان میں، تو لیبنان کے معاشرے کی پاور ڈائنامکس اور اس کی جو سینس آف آئیڈینٹی تھی، اور وہاں کے جو ڈائنامکس ہیں، اس میں فرق پڑا۔ پھر اسرائیل کا اس میں انٹرسٹ ہوا، اور کیسے لیبنان 1970 کی دہائی کے آخر میں اور 80s میں ایک بہت ہی خوفناک سول وار کا شکار ہوا، جو گزشتہ 1000 برس میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا۔ اسے انہوں نے بلیک سوان ایونٹ کا نام دیا۔ اس کے بعد سے یہ ٹرم جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کے اندر اس کا بے تحاشا استعمال ہوا۔ اب اس کی جو اگزامپلز دی جاتی ہیں دنیا میں بلیک سوان ایونٹس کی، اس میں کہا جاتا ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار جو ہے، جس میں بالکل مس کیلکولیشن ہوئی میجر پاورز کے درمیان، جنہوں نے خفیہ معاہدے کر رکھے تھے، کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی، جس میں شاید اس زمانے سے 50 ملین سے زیادہ لوگوں کی بعد میں اس میں ڈیتھ ہوئی، اور سارے امپائرز جو تھیں جمی جمائی، آٹومن امپائر، آسٹرین ہیپسبرگ امپائر، یہ ساری کی ساری جو ہیں وہاں پہ ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے انٹرنیٹ کا رائز، پرسنل کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پرسنل کمپیوٹرز جو ہم استعمال کر رہے ہیں، 9/11 کا حادثہ ہو جانا،
ये और फिर 2008 का क्रैश होना, इसी तरह अगर पेछे चले जाएं तो 1929 का जो ग्रेट इकोनॉमिक क्रैश है जिसमें वॉल स्ट्रीट क्रैश कर गई थी अमेरिका के अंदर और लाखों लोग जो हैं उनकी करोड़ों लोगों की जिंदगी उस वक्त तबाह हुई थी, ये सब जो है ये ब्लैक स्वान इवेंट्स हैं जिनका ग्रोटेस्क बहुत ही बड़ा उनका इम्पैक्ट होता है। ये प्रोबेबल बहुत इम्प्रॉबेबल होते हैं, रेयर होते हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये चीज़ होगी और पूरी जो स्ट्रक्चर या लाइफ है वो चेंज हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर भी बड़े ब्लैक स्वान इवेंट्स हुए हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो असैसिनेशन है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन है, उस वक्त के रियासती इदारे उनको वार्न कर रहे थे कि उनकी ज़िंदगी खतरे में। वो खुद उसको बिलीव नहीं करती थी, उनको यही लगता था कि उन्हें डराया जा रहा है ताकि वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग ना कर सकें। और लियाकत बाग में उनके ऊपर जो हमला हुआ और फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत बदल गई। उस हमले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, वो यकीनन एसेट्स होंगे किसी के, लेकिन जो मास्टरमाइंड थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रास्ते से हटाने वाले, वो कभी भी बेनकाब नहीं हो सके और कोई मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन उनके कत्ल के अंदर उनके कत्ल के हवाले से नहीं हो सकी। पॉलिटिक्स चेंज हो गई बिकॉज वो एक नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन थी। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनती, शी वाज ऑल सेट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। जिस तरह से चीज़ें थी, उनका एक अमेरिका के साथ एक रेप्रोचमा था, उनका जनरल मुशर्रफ के साथ रेप्रोचमा था और जनरल मुशर्रफ ने एज प्रेसिडेंट कंटिन्यू करना था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक बड़ी कदावर वेस्ट में एक्सेप्टेड प्राइम मिनिस्टर की हैसियत थी, लेकिन वो बड़ी नेशनलिस्ट थी। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वो डील कर सकती थी इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ नेगोशिएशन कर सकती थी बिकॉज वो समझती थी सियासी ढांचों की साख को। उसके बाद पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फिर अभी हम हाल ही में चले जाएं 2022 के अंदर, अरशद शरीफ का जो कत्ल है कीनिया के अंदर, ये एक तरह का ब्लैक स्वान इवेंट था बिकॉज इससे पहले एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आप गिरफ्तार कर सकते हैं, शायद केसेस बना सकते हैं, कभी उठा सकते हैं, पूछगिछ के लिए सख्तियां हो सकती हैं। लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट को इस तरह से हंट डाउन किया जाए। ऐसी कोई शक नहीं है कि इससे पहले हामिद मीर साहब के ऊपर एक कातलाना हमला हुआ था और इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को उठाया भी गया, सेफ हाउसेस में भी ले जाया गया, लेकिन जिस तरह से ये वाकया हुआ ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था। मतलब इट वाज शॉकिंग। और उसके बाद जो रिलेशनशिप था मीडिया और स्टेट के दरमियान में वो हमेशा के लिए डिस्टर्ब हो गया तब तक के कोई ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं तब वो कॉन्फिडेंस बहाल हो। इमरान खान के ऊपर जो हमला है 3 नवंबर का, इमरान खान वार्न करते रहे, उसके बावजूद एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये हमला इस तरह का होगा और ये भी एक तरह का ब्लैक स्वान इवेंट है। अब इस वक्त की क्या सिचुएशन है, अगर हम देखें कि सिचुएशन है क्या, इस वक्त की प्लेयर्स कौन से हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में और उनके दरमियान विदाउट सेइंग हम शुरू में ही कह सकते हैं कि जो की प्लेयर्स हैं उसमें एक तरफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ हैं जिन लोगों ने एक बड़ा सख्त स्टैंड ले रखा है अपनी पॉलिटिक्स के हवाले से, जिनको इलेक्शन चाहिए। वो कहते हैं कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन डिले नहीं होंगे, हमें हर सूरत इलेक्शन चाहिए पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बाद जनरल इलेक्शन हमें चाहिए और हमारा कोई एनआरओ देने का मूड नहीं है, हमारी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। दूसरे बहुत बड़े प्लेयर पंजाब में, कम अज़ कम माजी के बहुत बड़े प्लेयर नवाज शरीफ हैं जिनकी हुकूमत है, सेंटर में भी पंजाब में भी गवर्नर उनके और उनके आर्मी चीफ भी उन्होंने लगाए हैं, तो उनका इस वक्त बहुत ज़्यादा असर रसूख है। और वो नवाज शरीफ जो है उनको किसी भी सूरत पंजाब में इस वक्त इलेक्शन जो है वो नहीं चाहिए और उनकी पॉलिटिक्स जो है वो इस वक्त शदीद खतरात का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस कर रही है। फिर आसिफ अली जरदारी हैं जिनको ऑन द फेस ऑफ इट नहीं लगता कि उनकी पॉलिटिक्स इतनी थ्रेटेंड है, लेकिन दर हकीकत सिंध के अंदर उनका जो होल्ड है जरदारी फैमिली का वो अब बड़ा ब्रिटल है और बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है। मौलाना फजल रहमान की सियासत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अगर एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे तो वो दफन हो जाएगी, उनकी तमाम तर सियासत खत्म हो जाएंगे, किस्सा माजी बन जाएंगे। फिर बहुत बड़ा प्लेयर, सबसे बड़ा प्लेयर शायद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जिसकी इतनी ब्रूज्ड फॉर्म है इस वक्त, उसका एतमाद इतना शेक हो चुका है जितना कभी कह सकते हैं कि 50 बरस में कभी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, उसकी साख को, उसकी क्रेडिबिलिटी को इतना धचका नहीं लगा। और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे अपनी पोजीशन को दोबारा से नए तरीके से मुस्तहकम करने का मौका मिल सके। अपेरेंटली ये जितने भी इंटरनल फैक्टर्स और प्लेयर्स हैं इनके दरमियान एक डेडलॉक है, ये आपस में अब एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। कोई किसी के साथ कहने में ऑन द फेस ऑफ इट आपको लगेगा कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना में बड़ा ट्रस्ट है, लेकिन बहुत से सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान में भी किसी किस्म का कोई ट्रस्ट एग्जिस्ट नहीं करता और दोनों की पॉलिटिक्स जो है और उनकी राहें जो हैं वो जुदा जुदा हैं और किसी वक्त भी अलग हो सकती हैं। लेकिन सिर्फ यही प्लेयर्स नहीं है, आपको ये जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान
बहरहाल डिस्पाइट ऑल इट्स बैड्स जो इस वक्त उसकी सिचुएशन है, पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट मुल्क है जिसकी आबादी अंदाजन 250 मिलियन के करीब होगी, 25 करोड़ इसकी आबादी है। ये जियो स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, ये वाहिद जोहरी ताकत है मुस्लिम दुनिया की। लेकिन इसके साथ एक पॉइंट और ऐड कर दें तो फिर इसको आप बेहतर समझ सकेंगे। चीन जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी उभरती ताकत है, जिसको कंटेन करने के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादी हिंदुस्तान समेत लगे हुए हैं, कहीं उसके खिलाफ क्वाड बन रहा है, कभी पैसिफिक अलायंस बन रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी पूरा दुनिया का ट्रेड का नक्शा चेंज हो रहा है, कभी कोल्ड वॉर की बात हो रही है, कभी ताइवान के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है। वो चीन जो है उसके वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर, उसके वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर सिर्फ एक फ्रेंडली स्टेट है, उसका सिर्फ एक एलाय है गुज़िश्ता 50 बरस का, उसके वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर, जिसके अंदर उसने इन्वेस्ट भी किया है एक बड़े अनडिक्लेयर्ड तरीके से, ये कह के कि ये इकोनॉमिक है, लेकिन दर हकीकत एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी की हुई है सीपेक और बेल्ट रोड इनिशिएटिव के हवाले से। तो चीन के बॉर्डर्स पे सिर्फ एक एलाय है, बाकी सब हॉस्टाइल स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ एक एलाय है और वो रिलेटिवली स्टेबल था, और गुज़िश्ता एक बरस में वो खासा अनस्टेबल हो चुका है। जब जून 2020 में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इन विच चाइना गॉट द बेटर ऑफ इट, और हिंदुस्तान को ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, तो एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि हिंदुस्तान के अंदर ये बड़ा वावेला और शोर था कि इंडिया फेसेस अ टू फ्रंट सिचुएशन। अमेरिका में भी इसकी बड़ी डिस्कशन हुई, और वो टू फ्रंट क्या था कि एक न्यूक्लियर पाकिस्तान है, एक न्यूक्लियर चाइना है, और इंडिया जो है वो उसके दरमियान में फंसा हुआ है और दोनों से साइमल्टेनियसली नहीं लड़ सकता। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि कोई नहीं शायद बात कर रहा होगा टू फ्रंट की, बिकॉज पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल और उसकी जो रीजनल और इंटरनेशनल ओरिएंटेशन है उसमें बहुत फर्क आ चुका है। लेकिन इस स्टेज पे अगर किसी तरह से पाकिस्तान मजीद डिस्टेबलाइज होता है, कयास का शिकार होता है, तो की चाइना का जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर फ्रंट है वो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वन पॉइंट। अब इसमें इमरान खान साहब की तरफ से, इमरान खान बहुत विजिबल पर्सनालिटी हैं, मरीम नवाज साहबा बहुत विजिबल पर्सनालिटी हैं, राना सनाउल्लाह जो हैं वो बहुत विजिबल पर्सनालिटी हैं, इस वक्त हेमिस्फीयर के अंदर नजर आते हैं। कोई भी ताकत जो है, कोई भी प्लेयर जो है वो इररिस्पॉन्सिबल एक्शन कर सकता है अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए और ऑब्टेन करने के लिए। वो किसी भी तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है, हमें नहीं पता कि कौन क्या कार्रवाई करता है, और इसका जितना ज्यादा अदराक होगा पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के मीडिया को, सोचने समझने वाले लोगों को, अखबारात को, हुकूमतों को, उतना ही ज्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम किसी को यहाँ पर कोई ब्लैक स्वान इवेंट नहीं करने देंगे। एक ऐसा ब्लैक स्वान इवेंट जिससे तमाम पॉलिटिक्स और तमाम सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो एकदम तब्दील हो जाए, और मुख्तलिफ किस्म के जो प्लेयर्स वो अपने अपने इंटरेस्ट उसमें देख भी सकते हैं। ये वो ब्लैक स्वान इवेंट का फियर है जो बहुत से लोग महसूस भी करते हैं, मैं भी महसूस करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये बिल्कुल गलत हो। इमरान खान साहब की ज़िंदगी को डेफिनेटली ख़तरा है। मरीम नवाज भी बहुत ज़्यादा विजिबल हैं, क्योंकि वो बहुत प्रोटेक्टेड भी हैं। इमरान खान को मसलसल वुल्नरेबल पोजीशन में डाला जा रहा है, इसीलिए हम तवक्को करते हैं कि अदालतें इंटरवीन करेंगी और उनको वीडियो लिंक के जरिए, क्योंकि बार बार, यानी वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं पाकिस्तान में, खाली इमरान खान ही नहीं, आर्मी चीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, लेकिन वो अनप्रोटेक्टेड नहीं है। इमरान खान वो वुल्नरेबल पर्सनालिटी है जिसे बार बार हुकूमत, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी अपना केस बनाया, उनको मजीद वुल्नरेबल पोजीशन में डालने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो क्वाइट एग्जैजरेटेड तरीके से अननेसेसरीली उनको एक दुश्मन बना के प्रेजेंट किया गया है। पीटीआई के लोग सुबह उठते हैं, दोपहर शाम राना सनाउल्लाह को गाली निकालते हैं, नफरत का इजहार करते हैं। जो कुछ भी हो रहा है, जनरल शोएब अमजद को कोई उठा ले, कोई केस दर्ज हो जाए, तो एक ही बात होती है कि राना बड़ा ईवल है। और हो सकता है बहुत से एक्चुअल लोग जो बहुत सी चीजें कर रहे हैं, वो भी उनकी कोशिश है कि तमाम तर मलबा जो है वो राना सनाउल्लाह पे फेंके। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सी चीजें राना सनाउल्लाह नहीं करते, हो सकता है बहुत सी चीजें जो हो रही हैं उसमें से 50% भी ऐसी नहीं है जिसकी डिसीजन मेकिंग, और 50 तो मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, शायद 25% भी ऐसी नहीं होंगी जिसकी डिसीजन मेकिंग राना करते हैं। लेकिन एक आम तासुर यह है कि हर बुरी चीज जो हो रही है, जो जुल्म सितम या फैशिज्म हो रही है, ये राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि वो नहीं कर रहे। लेकिन पीटीआई वाले मसलसल नफरत का इजहार करते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे पे कातलाना हमला जो है वो राना सनाउल्लाह ने प्लान किया, हर बुरी चीज जो है वो राना सनाउल्लाह पे फेंकी जा रही। तो
یہ جو ایک پولرائزیشن ہے یہ بھی بڑی خطرناک ہے. رانا صاحب کو خود بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, تحریک انصاف کو بھی اس کے بارے میں ایک سینسیبل اپروچ لینی چاہیے, ان کو انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے کہ کون سی چیزیں رانا صاحب کر رہے ہیں, کون سی چیزیں رانا صاحب نہیں کر رہے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بہت سی چیزیں رانا صاحب نہیں کر رہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں آگے پیچھے سسٹم میں جو چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا ملبہ جو ہے وہ رانا کے اوپر گرے اور رانا کو آپ ایک ڈیمن کے طور پہ رانا ثناء اللہ کو دکھائیں. دس از دا پوائنٹ. اچھا, اب ہم بہت کچھ میں نے کہا ہے, اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے, اور میں یہی توقع کرتا ہوں کہ مقصد یہی ہوتا ہے انالیسس دینے کا کہ بہت سے خطرات جن کا آپ اظہار کرتے ہیں وہ کبھی بھی صحیح جو ہے وہ ثابت نہ ہو سکیں. اور رانا صاحب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو عمران خان صاحب کو بار بار بلایا جاتا ہے عدالتوں میں, جیسے اسلام آباد کی عدالت ہے, وہ اپنا انفلوئنس یوز کریں اور وہاں پہ ان کو ویڈیو لنک کی فیسلٹی دلائیں. تو ابھی اتنا ہی مجھے کہنا ہے, پھر میں آپ کے اس پہ ریئیکشن دیکھتا ہوں, پھر بات ہوتی ہے. تھینک یو.